Now we begin the bulletin with information about the Rajendranagar Coaching Center mishap, where 3 students were killed in the flooding that has taken place. As per the information that we have, the police have registered a criminal case in connection with the Rajendranagar incident, where 3 people had lost their lives. They were UPSC aspirants. This took place after the basement of a UPSC coaching center flooded in New Delhi, which occurred on Saturday night. The police said that they are determined to find out the truth regarding the incident. In fact, when it comes to a statement made by the police, the Deputy Commissioner of Police Central, M. Harshvardhan, has said that they have registered a criminal case. Beyond this, forensic teams are on the incident spot, and the procedure of collecting forensic evidence is ongoing. So far, in connection with the case, 2 people have been detained. There is one final round of search operations that is pending, but the operation is moving towards a conclusion. Beyond this, water is still being pumped out of the basement. You can see the visuals of the aftermath on your screens at this point. Some of the trapped students were rescued. A few of them had even been sent to the hospital. Unfortunately, 3 have lost their lives. 13 to 14 people were rescued, however, and they are fine. This is according to a statement made by the DCP. Importantly, in connection with this, a group of students had staged a protest against the MCD, which is the Municipal Corporation of Delhi, this after the recovery of bodies. But the police has requested the students to not protest. Students are seeking justice. They want accountability. And the Aam Aadmi Party has ordered a magisterial probe. We're crossing over to my colleague, Kritika, to get us more on this. Kritika, very horrific situation. The question is, every year we keep saying the same thing, enough is enough. All right, we'll try to reestablish that connection with my colleague. मैं कहना चाहूँगा, पहली बात तो एक पेरेंट्स की भी गलती मानूंगा जो अपने बच्चों को इस जैसे स्लम में भेज रहे हैं। ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि हम बच्चों की भी गलती, हम ऐसी जगह जाके बैठ रहे हैं, उसको हम समझ नहीं पा रहे कि हम यहाँ पे बैठने के काबिल है या फिर कैसी जगह है। आप अपने घर में कभी बेसमेंट बैठते नहीं बैठते, यहाँ पे आप क्यों बैठ रहे हैं? दिल्ली है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है आपको। ये सब कहने की बात की चोचलेबाजी, कोचिंग जितने यहाँ पे इंस्टीट्यूट है वो बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, दैट्स इट। सर, अगर आप ये बिल्डिंग देखोगे, ये जो तीनों नई बिल्डिंग है, ये 1 साल पहले बने हैं। अगर ये 1 साल पहले बने हैं तो इतने लापरवाही से कैसे बने? क्योंकि दिल्ली में आज पहली बार नहीं है कि इतना भारी बारिश आता है। ये 10, 20, 30 साल से हो रहा है। अगर ये 30 साल से हो रहा है तो मैं ये MCD पे सवाल उठाना चाहता हूँ कि उन्होंने इनका परमिशन कैसे दे दिया इतना बनाने का बेसमेंट। और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोचिंग माफियाओं के धंधे ने आज 3 मासूमों की जान ले ली। ये तो लीगल फैक्ट है, अभी इलीगल फैक्ट आना पता नहीं क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि ये बेसमेंट के भी नीचे B2 में जो है लाइब्रेरी को संचालित किया जा रहा था, इसमें 3 लोग जिम्मेदार हैं। सबसे पहले तो ऑनर वेद गुप्ता, इसको तुरंत पकड़ो और इसको फांसी की सजा दो। दूसरा इसमें जिम्मेदार है दिल्ली सरकार और उसकी मंत्री आतिशी मंडेला। और तीसरा इसमें जिम्मेदार है MCD, क्योंकि MCD ने जो परमिशन दी थी वो बेसमेंट प्लस 4 की दी थी, बट बेसमेंट के नीचे भी एक बेसमेंट बनी थी। 4 दिन पहले आपने देखा पटेल नगर में एक बच्चा नीलेश, वो पानी के गड्ढे से बचने के लिए लोहे के गेट को पकड़ता और उसमें करंट था। क्या दिल्ली में ये UPSC के जो जवान बच्चे हैं, इनकी मौत की कोई कीमत नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि अगर 10 दिन पहले मानसून जब आने वाला था, ये 300 लोग तब क्यों ना तत्परता दिखाकर खड़े हुए? 6 दिन पहले सर पटेल नगर में हमारा एक दोस्त था, मेंस की तैयारी कर रहा था सर, उसका करंट लगने से डेथ हो गया। पहली डिमांड है कि जितने भी कल्प्रिट लोग हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उससे पहले सर इमीडिएट डिमांड है कि जितने डेथ काउंट है और सर जितने इंजरीज है वो हमको साफ बताया जाए। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा सर कि जैसे यहाँ पे हम देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि 80% लाइब्रेरियाँ जो हैं बेसमेंट में हैं, और हमें यहाँ ये देखने को मिलता है कि जैसे ही अगर बारिश 10 मिनट भी होती है, यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। We want our answers, sir. And here is no one to take the responsibility what has happened in there. पहला डिमांड हमें इस राउज IAS के डायरेक्टर जो भी है VP गुप्ता, वो हमें चाहिए, कल सुबह तक चाहिए। दूसरी चीज हमें MCD के डायरेक्टर चाहिए यहाँ पे। तीसरी चीज 24 घंटा नहीं, अगर कल को किसी भी पुलिस वाले का या किसी भी पॉलिटिकल जो भी हैं
उनके बच्चे के साथ ऐसा होता ना तो अभी बवाल हो चुका होता, अभी के अभी सारा पुलिस आ जाता। जितनी लाइब्रेरियां हैं वो लोग करीब 2500 से 3000 से ऊपर ही रुपया लेते हैं, तो वो लोग सारी मानक के अनुरूप लाइब्रेरियां हों। और ये जो राउस IAS है इसमें मैंने 1,75,500 रुपये फीस दी है, और ऐसी बिल्डिंग में जिसमें 3 लोगों की मौत हो जाए और 4 घंटे बाद उनकी डेड बॉडीज ना निकाल पाए, उसमें मुझे अपना पूरा पैसा वापस चाहिए। We are joined by the local. Sir, this is a very prominent area right next to the metro station. It was very well known fact that waterlogging do happen. Why was the authority sleeping? Why were they sleeping? This everything is is very sad. Even I am not able to speak anything. राजनीति नहीं करने का टाइम है इस वक्त। आप देख रहे हैं NDRF की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम लगी पड़ी है पिछले 4 घंटे से। ये आम लोगों का रास्ता है, दिन भर भीड़ रहती है, रात भी भीड़ रहती है, पानी भरता किसी को सोधी नहीं थी। आम आदमी पार्टी के साथ आम आदमी की सरकार दिल्ली में है, MCD में है। यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक, उनका काम है। आम आदमी पार्टी की काउंसिलर आरती चावला, उनका काम है। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं कह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ सबसे कि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। पिछले residents are worried that this kind of casualty should not be reported once again. But the fact of the matter is that so much of preparation, this kind of casualty has happened. The Delhi police team is also here on the ground. They have taken assistance from the NDRF and the fire department. Why was the authority sleeping? Why were they sleeping? This everything is is very sad. Even I am not able to speak anything. देश के दो, कैन आई स्पीक इन हिंदी? Yeah, sure. देश के 2 भविष्य की जान चली गई है। आप राजनीति नहीं करने का टाइम है इस वक्त। आप देख रहे हैं NDRF की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम लगी पड़ी है पिछले 4 घंटे से। आम आदमी पार्टी के साथ आम आदमी की सरकार दिल्ली में है, MCD में है। यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक, उनका काम है। आम आदमी पार्टी की काउंसिलर आरती चावला, उनका काम है। हाँ, 2 मौतें हो गई। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं कह रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ सबसे कि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। It was a very well known fact that waterlogging do happen. Blame game have started, but how did this happen? As we got to know about this unfortunate incident, Durgesh Patak MLA, the local MLA, and I reached here, and NDRF team are doing the rescue operations. Just got to know confirmation of only 1 dead body, and we pray to God that anyone who is inside should come safer outside, and definitely if any MCD officer is responsible, we will take action on that. 7 electrocution deaths so far since this rainy season has started. Now this, people are slightly angry. I don't know their political, belongings and all, or allegiance, but it's a fact that it was an area where the waterlogging do happen. So was it so that no preparation was done on the ground? On this particular road, waterlogging is happening since 40 years, and I think this is not the time to do politics. This is not the time to do blame game. All the departments and all the leaders should come together so that such incident does not happen again. All right, we're crossing over to my colleague Kritika to get us more on this. Kritika, there's a time to really understand what's going on here, but at this point as well, every year we're constantly seeing incidents like this. At the coaching center, where yesterday at 7 p.m. the fateful call was received, wherein the basement of this IAS center was completely inundated. Now, so far, we know that 3 bodies have been recovered by the joint efforts of the NDRF, of the Delhi Police, and of the fire services. Currently here, a lot of students have assembled. They have questions like the rest of us. This is the event that happened yesterday is in the line of the many incidents that we are witnessing in the national capital. It is the 7th possibly electrocution death, and also students are very worried because just a few days ago, another 26-year-old IAS aspirant, civil service aspirant lost his life. There are a lot of questions that the students demand answers to. They've collected in huge numbers. They're also protesting outside where the barricades have been set up. You can see the police team is still there. The fire services trucks are also here. But the biggest question right now is who will take the accountability for the for the incident that occurred last night. I have a few students here who wanted to speak to us. I'll take you to them.
their major concerns are that this is not the first time this area in Karol Bagh, in Rajendra Nagar, where all these coaching institutes are located, this is not the first time that the area got waterlogged in a very short span of time. That is what is most alarming. It has been a repeated call of distress that they've made. It's an issue that they've raised consistently. They've told us how many times around like 10 p.m. in the night, barricades are set up because it's so difficult to walk. But that, they say, is not really the solution. The solution is working towards some infrastructural changes that will ensure that this does not happen again. We have a few students with us, sir. आप हमें बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत पानी भरने की समस्या हमेशा से ही लगी रहती है। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे जो रोड का है ना मैम, वो ऐसे है, तो जब भी बारिश होती है तो यहाँ पे पानी ज्यादा आ जाता है, इस एरिया में खास करके। तो कल भी सेम वैसा ही हुआ है, और मतलब इसके लिए एमसीडी को पहले से ही तैयार करना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही पटेल नगर में एक इंसिडेंट हो गया है। तो अभी तो बारिश का मौसम है, लाइक 1-2 मंथ ऐसा ही होगा, तो उनको एक्शन लेना चाहिए था। दिस शुड नॉट सिट लाइक दिस। आपने ये इशू रेज किया है पहले भी एमसीडी के साथ? देखो, हम तो नए हैं, बट हमने ये इशू देखा है। रेस तो हम नहीं कर पाए, बट अब हम जरूर करेंगे, क्योंकि हम अब सोच रहे हैं कि एक स्टूडेंट यूनियन भी फॉर्म करे। अब बच्चे भी रास्ते पे आ गए, क्योंकि ये अब बियॉन्ड टॉलरेंस हो गया है। क्योंकि हम 4-5 दिन पहले देखा था कि पटेल नगर में एक बच्चे की इलेक्ट्रिक्यूशन की वजह से डेथ हो गई। तो ये चीजें अगर बार बार होती रहेगी तो हम भी कुछ सपने लेके यहाँ आते, तो फिर इस तरह से मरना तो नहीं चाहता कोई भी। तो हम कुछ करेंगे, हम जरूर एमसीडी को आवेदन देंगे, जो भी है, हम जो भी आगे की जो लीगल कार्रवाई है वो देख लेंगे। बाकी कोचिंग सेंटर्स के अंदर हमें बताया जा रहा है, क्योंकि ये बेसमेंट था, क्योंकि ओवर क्राउडेड था, फर्नीचर लगा हुआ था, क्या बाकी भी कोचिंग सेंटर्स में हमें यही देखने को मिला? देखो, यहाँ पे सब कोचिंग इंस्टीट्यूट का सेम ही हाल है। वो बस नाम को प्रीमियम इंस्टीट्यूट खुद को बोलता है। अभी ये देखो, बिल्डिंग देखोगे कि तो बहुत अच्छा कोई पॉश आईटी ऑफिस का बिल्डिंग लगता है। सेम गोज विद एवरी बिल्डिंग। सबका बेसमेंट में आइदर क्लासरूम है या फिर लाइब्रेरी है। और ये भी छोड़ दो, आप आगे जाओगे जो भी एग्जिट एंट्री पॉइंट्स, आपको लगता है कि अगर कुछ फायर इंसिडेंट हो, कुछ जैसे कल जो इंसिडेंट घटा कि वहाँ पानी आना चालू हो गया, इतनी स्पीड से आया कि आप निकल नहीं पाए, आपको वहाँ सेफ फील होता है कि आप निकल पाएंगे? डू यू फील दैट एन एंट्री एग्जिट पॉइंट इज क्लियरली मार्क्ड? इट्स नॉट अबाउट वी फीलिंग सेफ। हमने तो देख लिया ना जो हुआ हो। इट्स नॉट अबाउट कि हम सेफ फील कर रहे हैं, नहीं। वो बच्चे भी तो सेफ फील कर रहे थे ना, क्योंकि उनको आइडिया नहीं था कि क्या होगा। वो तो पढ़ रहे थे, छोटे बच्चे थे, तो उनका प्रॉब्लम वही है ना। तो हम तो सेफ फील कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए इनको अगर फीस दे रहे हैं तो वो इन रिटर्न कुछ तो करेंगे। और सबसे बुरी बात यह है कि जो भी इंस्टीट्यूट यहाँ पे है ना, हर एक टेलीग्राम चैनल को, यूट्यूब चैनल को, इनके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को मैंने फॉलो किया है। नन ऑफ द इंस्टीट्यूट, एक भी इंस्टीट्यूट ने बॉदर भी नहीं किया कि बच्चों के बारे में कुछ बोले कि हम सॉरी फील कर रहे हैं। एक भी मैसेज, उल्टा एडवर्टाइज के मैसेज अलग से डाल रखे रात से। तो मतलब क्या चाहते हो? आपके बेसमेंट में बच्चों की मौत हुई है, ठीक है, और वो भी ऐसे बच्चे जिनसे आपका घर चलता है। 3-3 लाख रुपए फीस दे रहे हैं ना, तो उनके लिए एक मैसेज तो डाल सकते हैं। कम से कम आ जाओ यहाँ पे, पूछ लो बच्चों के क्या प्रॉब्लम है। सर, अभी सबसे आपकी बिगेस्ट डिमांड्स किससे? आप कौन चाहते हैं कि कौन आए आगे स्टेटमेंट निकाले, कोचिंग वाले आए या फिर गवर्नमेंट आपको कुछ आश्वासन दे? व्हाट डू यू थिंक द प्लान फॉरवर्ड शुड? आश्वासन नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम अभी की नहीं है। ये इस साल प्रॉब्लम नहीं हुई, ये प्रॉब्लम हर साल की है। अगर यहाँ 5 मिनट बारिश हो रही है ना, अभी 4 फुट पानी आपके सामने भर जाएगा। तो बात सोल्यूशन सिर्फ यही है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो केजरीवाल जी ने बोला था कि हम दिल्ली को नदियों का शहर बनाएंगे, वो नदियों का शहर अलग से बनाए। झीलें, जो बारिश के टाइम पे जो झीलें हैं, वो यहाँ ना बने, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ 4-4 फुट पानी भर जाते हैं एंड तारे हैं। और बाय चांस अनफॉर्चुनेटली या मतलब गॉड फॉरबिड कभी वो तार